آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ عمران خان کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا، پاکستان کی عدالت نے سنا ہے فیصلہ۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا 31 جنوری سے آغاز، 1 فروری کو ہوگا بجٹ پیش۔ ایئرپورٹس پر فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت، شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل۔ موسیٰ ندی کے کنارے کی تاریخی عمارتیں خطرے سے دوچار ورثے کی فہرست میں شامل، ورلڈ مونومنٹس واچ کا انکشاف۔ اور افضل گنج فائرنگ واقعہ، پولیس کر رہی ہے لوٹیروں کی سرگرمی سے تلاش۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لاس اینجلس شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں 11 روز سے لگی آگ کی وجہ سے تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ لاس اینجلس کی یونیفائیڈ اسکولز ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اسکولز کی ایک کثیر تعداد جل کر راکھ بن گئی ہے اور انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کی وجہ سے شہر میں تعلیمی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آگ سے تباہ ہونے والے کچھ اسکولز کی تعمیر نو میں 2 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے جمعہ کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ سے جڑے اختیارات کا غلط استعمال اور بدعنوانی سے متعلق معاملے میں بالترتیب 14 سال اور 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے عمران خان پر 10 لاکھ پاکستانی روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا، جبکہ ان کی اہلیہ پر اس کے نصف رقم کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی عدیالہ جیل سے چلنے والے احتساب عدالت نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا اور اسے 3 بار مؤخر کرنے کے بعد آج سنا دیا گیا۔ عمران خان اگست 2023 سے اسی جیل میں بند ہے، جبکہ بی بی بشرا کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ مرکزی حکومت 1 فروری کو مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ پیش کرے گی۔ بجٹ اجلاس 31 جنوری سے پارلیمنٹ میں شروع ہوگا۔ پہلے دن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر فینانس نرملا سیتارمن 1 فروری کو بجٹ پیش کریں گے اور اس اجلاس کا پہلا مرحلہ 13 فروری تک جاری رہے گا۔ بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ 10 مارچ سے 4 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں بجٹ پر مباحث ہوں گے۔ کانگریس نے آج سپریم کورٹ میں ایک مداخلتی درخواست داخل کی، جس نے گزشتہ ماہ 1991 کی عبادت گاہوں سے متعلق قانون کی بعض دفعات کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت شروع کی ہے۔ کانگریس نے اس قانون پر سختی سے عمل آوری کا مطالبہ کیا اور اس معاملے میں عدالت سے رجوع ہونے میں دیگر اپوزیشن جماعتوں بشمول بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ ممبئی پولیس نے جمعہ کے روز بالی ووڈ کے معروف اداکار سیف علی خان پر حملے کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے باندرا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ شکایت میں بتایا گیا ہے کہ حملہ آور نے اہل خانہ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ شکایت کنندے نے بتایا کہ حملہ آور نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک لکڑی اور ایک لمبا سا بلیڈ پکڑا ہوا تھا اور اس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملازمہ کے مطابق جب اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تو بلیڈ سے اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے۔ شکایت میں مزید بتایا گیا ہے کہ حملہ آور نے انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہوئے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا۔ ممبئی پولیس نے حملے کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ انڈین مجاہدین نامی ممنوع تنظیم کے مبینہ رکن ہونے اور ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی مبینہ مجرمانہ سازش رچنے کے الزامات کے تحت گزشتہ تقریباً 12 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے محروس رانچی کے رہنے والے اعلیٰ تعلیمی یافتہ عزیز احمد شمس الحق کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم دہلی ہائی کورٹ نے جاری کیا۔ ملزم عزیز احمد کو جمعیت العلماء مہاراشٹرا ارشد مدنی قانونی امدادی کمیٹی نے قانونی امداد فراہم کی۔ ملزم کو دہلی پولیس نے 30 اکتوبر 2013 کو گرفتار کیا تھا، تب سے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں محروس ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے دورہ سنگاپور کے موقع پر سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور تلنگانہ کی ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا۔
इस मौके पर रेवंत रेड्डी और वजीर IT और इंडस्ट्री श्रीधर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। इस माहिदे के तहत सिंगापुर की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तालीमी निसाब को तेलंगाना की स्किल यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। इस माहिदे पर स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुब्बा राव और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर फाबिन चैंग ने दस्तखत किए हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट OBC वेलफेयर वजीर पोन्नम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमातें नए राशन कार्ड्स की इजराई पर गलत तशहीर करते हुए सियासत कर रही हैं। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब हसनाबाद के चगोर मामिडी मंडल के इंदुर्ती गांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत पुराने राशन कार्ड्स को ख़त्म नहीं कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें जानबूझकर इस पर गलत तशहीर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने पिछले 10 साल के दौरान ना तो नए राशन कार्ड जारी किए और ना ही गरीबों को मकानात फराहम किए, और अब जब कांग्रेस हुकूमत एक काम कर रही है तो BRS को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें 37 दिन नहीं बल्कि 370 दिन जेल में रखकर दिखाएं, लेकिन वो किसी से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जो आवाम से किए गए वादे पूरा करें, वरना आवाम उन्हें बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसानों और गरीब आवाम के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हुकूमत को हर कदम पर जवाबदेह बनाएंगे। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में मुनक्किदा किसान धरना से खिताब करते हुए KTR ने आवाम से अपील की कि जब कांग्रेस के कायदीन सरपंच और ZPTC इंतखाबात में वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसान भरोसा स्कीम के तहत फी एकड़ 17,500 रुपए देने का वादा कर चुके हैं, वो रकम कहाँ है। ఒక్క నరేందర్ రెడ్డి కాదు, నేను కూడా చెప్తున్నా, 37 రోజులు కాదు, నీకు దమ్ముంటే 370 రోజులు పెట్టుకో, ఫరక్ పడేదేం లేదు, భయపడేటోడు ఎవడు లేడు. కానీ నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకో, నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి హామీ ప్రజలకు ఇచ్చింది నిలబెట్టుకో. నిలబెట్టుకోకపోతే మేము అడుగుతూనే ఉంటాం, ఎంటాడుతూనే ఉంటాం. రైతుల తరపున, ఆడబిడ్డల తరపున, పేద ముసలి వాళ్ళ తరపున కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఆఖరిగా ముసలోళ్ళను కూడా మోసం చేసిండు. అవ్వా నీకు కేసీఆర్ ని ఒక్కనికే ఇస్తుండు ఇంట్లో 2,000, నేను అవ్వకు తాతకి ఇద్దరికి ఇస్తా, ఆయన 2,000 ఇస్తుండు, నేను 4,000 ఇస్తా అన్నాడు. ఒక్కలకి ఇస్తుండు కేసీఆర్, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అని చెప్పిండు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఇస్తా అని చెప్పిండు. వస్తున్నాయా మరి 4,000? GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के एक वफ्द ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ BRS कायद रुकन कानून साज काउंसिल कलवा कुंटला कविता की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर GIO के वफ्द ने तंजीम की जानिब से सालिनों की खुसूसी डायरी कविता को पेश की। इस मुलाकात में GIO के नुमाइंदों ने तंजीम के मिशन, कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों पर रोशनी डाली और समाजी और तालीमी मैदान में ख़वातीन की तरक्की के हवाले से अपनी कोशिशों से उन्हें वाकिफ करवाया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात की प्राइमरी की 18 जनवरी को जारी करने का ऐलान किया है। 18 था 22 जनवरी तक उम्मीदवारों के लॉग इन पोर्टल पर ये की दस्तयाब रहेगी और उम्मीदवार ऑनलाइन ही एतराज़ात दर्ज करवा सकते हैं। एतराज़ात सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में जमा करवाने होंगे। एतराज़ दर्ज करने के लिए ज़रूरी है कि मुताल्लिक़ा सवाल के बारे में जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, इसके मुसन्निफ़, एडिशन, सफ़ा नंबर, पब्लिशर का नाम या वेबसाइट का लिंक भी फराहम किया जाए। एतराज़ात सिर्फ ईमेल के ज़रिए कबूल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 15 और 16 दिसंबर को ग्रुप 2 के इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को इतला दी है कि वो सालाना इम्तिहानात की फ़ीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि 2,500 रुपये लेट फ़ीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया है ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल जाने वाले मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन के अमल को तेज़ और आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्यूल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है।
इस खुसूसी सर्विस को भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए मुतारुफ करवाया गया है। इस सहूलत का इफ्तिताह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात की रोज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया और वहां से वर्चुअल तरीके से हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोची एयरपोर्ट्स पर भी इस सिस्टम को फ़ाल कर दिया गया। हैदराबाद के शेखपेट इलाके में डीमार्ट के करीब एक इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। ये वाकया आज अलसुबह तकरीबन 5 बजे उस वक्त पेश आया जब जूही फर्टिलिटी सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलकर आकाश स्टडी सेंटर तक पहुंच गई। ये इमारत रिलायंस ट्रेड के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है, लेकिन खुशकिस्मती से आग नीचे तक नहीं पहुंची। आग लगने के बाद इमारत से कसीफ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। उन्होंने खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शदीद धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। बिलाखिर बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बीआरएस रुकनी असेंबली पी कौशिक रेड्डी से पुलिस ने 1 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ड्यूटी में रुकावट डालने के इल्जाम में दर्ज केस के सिलसिले में वो मानसाब टैंक पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जहां उनसे 1 घंटे तक पूछताछ के दौरान 32 सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि तमाम सवालात के जवाब दिए और उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। बादजा मीडिया से बातचीत करते हुए कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इन पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं और इसी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले नलगोंडा के गंडलापल्ली मंडल में डिंडी तहसीलदार के दफ्तर में एक एडिशनल रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त नैना व श्याम नायक के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक मुलजिम ने शिकायत कुनिंदी की बहन की कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये नकद रकम बतौर रिश्वत तलब और कबूल किए थे। हैदराबाद के फिल्मनगर में बीआरएस के सीनियर कायद और साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के घर में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकों ने घर में घुसकर 1.5 लाख रुपए नकद रकम और कीमती सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। वारदात का पता चलने पर इनकी अहलिया अरुणा देवी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। ये मौका पहला नहीं है जब किसी सियासी लीडर के घर चोरी हुई हो। गुज़िश्ता साल नवंबर में रियासती वजीर श्रीधर बाबू के घर भी चोर घुस आए थे। मूसा नदी के किनारे वाक़ हैदराबाद की कुछ मशहूर इमारतें हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, आसिफिया लाइब्रेरी, सिटी कॉलेज और ब्रिटिश रेसिडेंसी को खतरे से 2-4 विरसे के मकामात के तौर पर तस्लीम किया गया है। इन तारीखी इमारतों को 2025 वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच में शामिल किया गया है, जो कि माहौलियाती और आबोहवा के चैलेंजों की वजह से खतरे से 2-4 मकामात को नुमायां करने वाली आलमी फहरिस्त है। ये ऐलान न्यूयॉर्क में वाक़ WMF ने किया। हैदराबाद की मूसा नदी की तारीखी इमारत को गुजरात में भोज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम के साथ मुंतखब किया गया, जिससे वो दुनिया भर में 25 में से सिर्फ 2 हिंदुस्तानी मकामात हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ की फौरी कोशिशों की ज़रूरत है। आउटर रिंग रोड से हैदराबाद के कुंडापुर तक 1.2 किलोमीटर तवील 2 तरफा 6 लेन वाला फ्लाईओवर इस साल अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। इस बार फ़ाल होने के बाद फ्लाईओवर गच्चीबौली जंक्शन पर ट्रैफिक के हुजूम को कम करेगा और हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाएगा। हैदराबाद पुलिस ने 2 मुजरिमों को पकड़ने के लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद में गाड़ियों की चेकिंग और तलाशी ली, जिन्होंने अफजलगंज में एक ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर पर उस वक्त फायरिंग की जब वो उनका बैग चेक कर रहे थे। मोहम्मद जहांगीर, जो रियासत नगर के रहने वाले हैं, रोशन ट्रैवल्स अफजलगंज में मैनेजर के तौर पर काम किया करते हैं। जुमेरात की शाम को बिदर जिले में एक डकैती में मुलविस डाकू होने के शुबे में 2 अफराद ने एक मिनी बस में इन्हें गोली मार दी थी, जिसके नतीजे में जख्मी हो गए और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं।
हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखी गई क्योंकि संक्रांति के बाद हजारों खानदान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने आबाई मुकामात से हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात वापस लौट रहे हैं। मुख्तलिफ अजला के बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का खासा हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के टोल प्लाजा पर भी कारों, बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा, पाकिस्तान की अदालत ने सुनाया फैसला। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 31 जनवरी से आगाज, 1 फरवरी को होगा बजट पेश। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत, शम्स-आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल। मूसा नदी के किनारे की तारीखी इमारतें खतरे से 2-4 विरसे की फहरिस्त में शामिल, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच का इंकिशाफ। और अफजलगंज फायरिंग वाकया, पुलिस कर रही है लुटेरों की सरगर्मी से तलाश। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।